Thank you, ma'am. Yesterday, so yesterday we have studied that pressure exerted by a liquid column is equal to H rho G, where H is the height of the liquid column, rho is the density of the liquid, and G is what? Acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Okay, now today we will discuss about hydrostatic paradox. Hydrostatic paradox. Hydrostatic paradox. In order to understand this, okay, in order to understand this, in order to understand this, that we are having three vessels. One is this one, another vessel is this one, and one of the vessel is like this, okay, like this. And their bottoms are connected with a horizontal tube. इनके जो bottom है, they are connected with what? Pulsars horizontal tube. Okay, इनके जो bottom है. And all now we fill this. This is ना आ गया आपके पास number 1 आ गया. This is number 2. मतलब A आ गया number 1. Okay, this is number 2 and this one is what? Number 3. इन सब की जो shape हो क्या है? All have say what कैसी shape बनके different okay. Now when I pour water from here, what will happen after some time? The level of water in all of these that will be equal. इनके नीचे से कॉमन में पानी जाएगा ठीक है? Okay. So what will be the pressure of this liquid column or what will be the pressure at the bottom of this vessel? What will be the pressure of liquid at this point A, point B, and point C? C is the bottom of vessel number 3, B is the bottom of vessel number 2, and A is the bottom of vessel number 1. Okay, so when we will check it, then we will be able to know that each and every point, the pressure at point A is equal to pressure at point B is equal to pressure at point C, and that is equal to H rho G. That is equal to what? H rho G. Means the pressure at a point does not depend upon the shape of the liquid column. देखो इसमें liquid column खुला है, इसमें liquid column congested है, इसमें जो है सब की तरह है ना. Okay, so therefore it means pressure at point A, B, and C is same. Okay, is same, and it does not depend upon the shape of the liquid column. It only depends on the height of liquid column. Height of liquid column. This is called paradox. Hydrostatic paradox. This is called hydrostatic paradox. The fact that different amounts of liquid exert same pressure. The fact that different amounts of liquid exert same pressure is called hydrostatic paradox. Is called hydrostatic paradox, or from the figures 1, 2, and 3. Pressure at a point does not depend upon the amount of. देखो listen, इसमें देखो अगर हम देखें तो इसमें पानी कम है, इसमें पानी बहुत ज्यादा है, उसमें पानी बहुत कम है. ओके, अगर मान लो सपोज करो हमारे पास यहाँ पे चौथा भी होता है ऐसे स्ट्रेट ऐसे, तो यहाँ पे प्रेशर उतना होगा ना. ओके, हाँ ओके, तो देखो इसमें पानी बहुत कम आना है, इसमें थोड़ा ज्यादा है, इसमें और ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा है. लेकिन means pressure at a point that does not depend upon the amount of liquid. Okay, that only depends upon the height of liquid column. Okay, write down next today. Variation of pressure with depth. Variation of pressure with depth. Variation of pressure with depth. Variation of pressure with depth, or very important article. First में आ गया variation of pressure with depth or effect of gravity, or effect of gravity, effect of gravity,
और इससे पहले क्या बोला हमने, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। तो कल भी हमने एक बोतल वाला एक्सपेरिमेंट देखा था ना, कल आपने मेरे को रिमाइंड कराया फिजिक्स लैब में। तो ओके, वैसे कर लेना उसको, पढ़िए बोतल उसको। नाउ व्हाट हैपेंस, देखो इधर, here is a vessel, कल वाले पे आ जाते हैं दोबारा। ओके, here is a vessel and it contains some liquid. Okay, let the density of the liquid is what? Rho. Let the density of the liquid is what? Rho. Okay, let the density of the liquid is what? Rho. And inside this liquid, let us suppose this is our imaginary cylinder. This is our imaginary cylinder of the liquid whose area of cross section is A. Whose area of cross section is what? A. And the height or length of this cylinder is equal to what? H. And the height of the cylinder is equal to what? H. Let V is the volume. V is the volume. So volume कितना हो जाएगा? A into H. V is the volume. Okay. So now what happens? जैसा कि हमने पहले देखा था, बताया था आपको कि इधर से भी फोर्सेज लगेंगे, इधर से फोर्सेज लगेंगे, लेकिन वो काउंटर बैलेंस कर देंगे, अपोजिट है ना। ओके, इस साइड से भी फोर्सेज लगेंगे, फोर्सेज ओके, थ्रस्ट होगा, ठीक है। व्हाट इज थ्रस्ट? when a liquid is contained in a container, okay, or a container is immersed inside a water liquid, then the liquid always exert force perpendicular to the walls of the container, and that force is called thrust, and thrust per unit area is called pressure. Okay, तो जब हम इसको डुबोएंगे तो उसके चारों साइड से ऐसे ऐसे बराबर डिस्टेंस की, जो बराबर हाइट पे पॉइंट होंगे, तो बराबर हाइट पे क्या आएगा? वाटर आएगा, फोर्स लगेगी, एंड दे विल बैलेंस ईच अदर एंड दे विल नलिफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। एक इसके ऊपर बैठे देखना, फोर्स जो है इसका ऊपर वाला सरफेस में इसको प्लेन बना देता हूं। ऊपर वाला जो सरफेस है इसमें फोर्स लगेगी, नीचे को कितनी है? F1। अब वो नीचे को क्यों लगी? क्योंकि परपेंडिकुलर टू द किसके लगनी है? सरफेस। ओके, और एक फोर्स जो है इसको चलो मैं नीचे से प्लेन कर देता हूं, फॉर्मूला आप समझ रहे हैं, स्प्लिट रही है। एक फोर्स जो है इसको नीचे से लग रही है, लेट दिस फोर्स व्हाट? F2, और ये कौन सी है? F1। अब ये नीचे को क्यों लगी, ऊपर को क्यों लगी? वो तो हमने पहले देखा, whenever a container is contained inside water or liquid, or liquid is contained inside a container, okay, always the liquid that exert pressure perpendicular, force perpendicular to the walls. Okay, okay, so what happened, एक फोर्स और बेटे जो इस पूरे के पूरे लिक्विड वॉल्यूम जो है, जो पूरे का पूरा लिक्विड का सिलेंडर है, इसका जो वेट है वो क्या है? mg। वो कहां को है? कहां को है? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसके ऊपर कौन सी कितनी फोर्सेज लगी? देखो, अगर मैं मान लूं इसको, मान लूं जैसे F3, और ये जो सारी चीजें इधर आ रही है, इनको अगर मैं मान लूं F4, तो F3 इज इक्वल टू व्हाट? F4 is equal to 0. Okay, or you can say F3 minus F4 is equal to what? 0. Because they are balanced forces. They are what? Balanced forces. Okay. अब जो forces, बाकी कितनी forces बची इसके बीच में? F1, mg, they are in downward direction, and F2 in upward direction. Okay. So therefore, downward direction forces in downward direction कौन सी होगा? That is equal to F1 plus mg, and forces in upward direction is equal to what? F2. Okay. अब लिसन, ये जो बाल्टी में हमने पानी रखा हुआ कंटेनर में, एक कंटेनर का जो पानी है, क्या इसमें भूचाल आ रहा है? क्या ये हिल डुल रहा है? तो जब कंटेनर का पानी नहीं हिल डुल रहा होगा, तो इसका मतलब हमारा जो इमेजिनरी सिलेंडर है वो भी नहीं हिल डुल रहा है ना। तो इसके ऊपर फोर्सेस तो काम कर रही है, इसका मतलब है जो फोर्सेस है, दो नीचे को है, एक ऊपर को है, इतनी फोर्सेस के कारण भी अगर ये नहीं लग रहा, तो इसका मतलब दी फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम है। ओके, और राइट डाउन as the cylinder is in equilibrium, therefore F1 plus mg plus minus F2 is equal to 0. Okay, or rather you can write is equal to F2.
जो नीचे वाली फोर्सेज है वो ऊपर वाली फोर्सेज के बराबर है, लेफ्ट वाली राइट वाली तो 3 4 तो कैंसिल कर गया, फिर हम इसको लिख लेंगे क्या F1 प्लस mg माइनस F2 इक्वल टू व्हाट 0 इक्वल टू व्हाट 0 ओके इक्वल टू व्हाट 0 नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हियर A तो यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा P1 इज इक्वल टू F1 फोर्स पर यूनिट एरिया और यहाँ पे प्रेशर P2 कितना आएगा फोर्स F2 अपॉन तो यहाँ पे बेटे F2 कितना आएगा फोर्स इक्वल टू व्हाट P2 into A और यहाँ पे फोर्स F1 कितनी आ जाएगा P1 into A ओके so therefore P1A plus mg minus P2A is equal to 0 okay so therefore you can write P2A minus P1A is equal to mg is equal to mg okay or what is mg m is volume into density volume into density so it is equal to volume into density into g okay what is volume volume is equal to a into h into rho into g okay so therefore all the three terms that is P2A, P1A and AH rho g they contains A okay so A से A हमने क्या कर दिया cancel okay so therefore P2 minus P1 is equal to what H rho g okay P2 minus P1 is equal to H rho g okay और ये क्या बता रहा है there is excess of pressure at the bottom of the cylinder okay than the upper part or whenever a body is immersed in a liquid that body experiences larger pressure at the bottom due to which that experiences larger force in our direction okay okay sir okay write down H rho g. This is modified form of Pascal's law. Yes, this is modified form of. Write down. This is modified form of Pascal's law. This is modified what? Form of Pascal's law. Okay. Also we know. Pressure is equal to what? Pressure is equal to what? Pressure at a depth is equal to H rho g. Pressure at a depth is equal to what? H rho g. Okay, H rho g. Okay, so you can write P2 is equal to P1 plus H rho g. Okay, listen P1 H rho g. देखो इधर बेटा ये जो कंटेनर था इस कंटेनर के ऊपर तो हमने ये जो प्रेशर देखा P1 ये तो इस वाले कॉलम के कारण था P1 लेकिन ऊपर से और भी प्रेशर किसका है एटमॉस्फेयर का प्रेशर है ना तो वी कैन राइट इट व्हाट P इक्वल टू PA प्लस HOG PA प्लस बॉटम में प्रेशर कितना होगा यहाँ पे P2 को अगर मैं P लिखूं तो P2 के ऊपर कितना होगा प्रेशर बहुत सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस हाइट है ना ओके हाँ राइट डाउन तो P minus PA is called gauge pressure GAUG gauge pressure P minus PA is equal to gauge
pressure at depth h, at depth h. Yes, next is बेटे atmospheric pressure. Write down first syllabus में है वैसे atmospheric pressure. Atmospheric pressure. Atmospheric pressure is the pressure exerted by the atmosphere of Earth. Is the pressure exerted by the atmosphere of Earth and it is equal to H into O into G. Okay, okay. Listen, देखना तो बड़े ध्यान से ना. एक साइंटिस्ट था हमारे पास, his name was Torricelli. Okay, Torricelli. TORRICIELLI क्या नाम था, Torricelli है ना. उसने क्या किया, एक कंटेनर में बेटे ड्राई मरकरी लिया, मतलब मरकरी के बीच में मॉइस्चर खाली होके, और उस मरकरी को उसने एक कंटेनर के बीच में डाला. ओके, और फिर ये बोरोसिल की ट्यूब ली जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर था, 1 मीटर की लंबी. उसको उसने क्या किया, बोलो शाबाश, बोलो. उसने वैक्यूम उसकी हवा निकाली और आगे फिंगर लगा दिया और उसको बीच में डुबो दिया ना. और जब उसने इसको छोड़ा, ओके, एक उसने ऐसे रख ली, दूसरी उसने ऐसे रख ली. उसने देखा जैसे उसने छोड़ा तो जो मरकरी था ना, मरकरी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, इसमें जो था वो 76 सेंटीमीटर तक चढ़ गया. इसका मतलब एटमॉस्फेरिक का जो प्रेशर है, पूरी की पूरी एयर कितनी आसमान तक है, उसका जो प्रेशर है मेरे इस हाथ के ऊपर, वो प्रेशर उतना ही है. अगर आप 1 सेंटीमीटर की ट्यूब का क्या मरकरी जितना 76 सेंटीमीटर है ना, वो जितना मेरे इस हाथ पे डालेगा. आपने लिखा ना प्रेशर में लिखा होता है इतने mm ऑफ H की. तो मैं कह रहा हूं अगर मान लो यहाँ पे एक क्या है, लंबी सी रॉड है मरकरी की और इसकी हाइट कितनी है 76 सेंटीमीटर ना. अकेली मरकरी की है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन मानने में क्या जाता है, हम करोड़पति बन जाते हैं. ओके, तो ये जो मेरे हाथ में जो प्रेशर डालेगी उतना प्रेशर एटमॉस्फेयर का. ओके, सो देयरफॉर इन ऑर्डर टू फाइंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वी विल यूज हियर H की जगह क्या करेंगे, दिस मरकरी लेंथ. H आएगा 0.76 मीटर इनटू डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी है 13.6. एक वेसल जिसमें 1 kg के आएगा वाटर आएगा, उसमें 13.6 kg के आ जाता है मरकरी. ओके, और अगर क्यूबिक मीटर हो तो आ जाएगा इनटू 10 raised to power 3. ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G 9.8 और जब सॉल्व करेंगे 1.013 into 10 raised to power 5 is equal to 1 atmosphere. Okay, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाले सिलेबस में नहीं है. ओके, लॉज ऑफ फ्लोटेशन सिलेबस में नहीं है. इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज नॉट इन सिलेबस. एंड यस व्हाट्सएप एक बच्चा मेरे को पूछ रहा था, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, सर वेदर द PT1 PT2 सिलेबस इज इंक्लूडेड इन PT3 और नॉट. यस, दैट इज इंक्लूडेड. ओके, एंड व्हाट इज द टेंटेटिव डेट, आई डोंट नो. जो जैसे पता लगेगी हमें तो आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगा. ओके, हाँ, यस. नेक्स्ट इज बेटे सरफेस टेंशन. राइट डाउन सरफेस टेंशन. Surface tension. Surface tension. Yes, surface tension. केमिस्ट्री में पढ़ी होगी आपने ना, surface tension. Okay, what is surface tension? Write down. It is the property of a liquid at rest. It is the property of a liquid at rest, by virtue of which the liquid behaves as by virtue of which the liquid behaves as a stretched membrane, by virtue of which the liquid behaves as a stretched membrane and tends to occupy minimum surface area, and tends to occupy minimum surface area or
और listen बेटा listen देखो जरा, let us suppose here is our, मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ आपको ना, here is a container, मैं आपको यहां से दिखा रहा हूँ, ओके, ऊपर से दिखा रहा हूँ इस कंटेनर को, एंड इट कंटेन्स सम लिक्विड, ओके, वाटर, ओके, और इस कंटेनर का जो वाटर का जो सरफेस है, सरफेस, उसके ऊपर अगर मैं 1 मीटर क्या करूँ, एक लाइन लगाऊं, तो इस लाइन के इस साइड में क्या है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, these molecules of water, और इस साइड वाले जो molecules of water है, ओके, ओके, इन्होंने इसने इसको फेंका हुआ, इसने इसको, इसने इसको, इसको, ओके, ओके, तो मींस जो सरफेस वाले हैं इन्होंने एक दूसरे को खींचा हुआ, मींस देयर इज सम फोर्स पर यूनिट लेंथ, देयर इज सम फोर्स per unit length only on the surface molecules, and that force per unit length is called what? Surface tension. That is called what? Surface tension. Okay, or surface tension is denoted by P and is defined as and is measured as force per unit length, and is measured as what? Force per unit length. And what will be its units? Newton per meter. What will be its unit? Newton per meter. Okay, and dimensional formula ml0 ml0 t minus 2 ml0 t minus 2, ये अभी आपको समझ में आया, ml0 t minus 2, yes, write down. Cohesive forces, cohesive forces, cohesive forces, forces between molecules of same kind. फास्टली को बड़े जल्दी से अब पीछे चल रहा हमारा सिलेबस. Forces between molecules of same kind, forces between molecules of same kind are called cohesive forces. Number 2, adhesive forces. Adhesive forces, forces between molecules of different kinds, forces between molecules of different kinds. For example, glue, Fevicol and wood, Fevicol and wood, paint and wall. पेंट को वॉल के ऊपर नहीं करते हैं, तो वॉल के मॉलिक्यूल कुछ और है, पेंट के मॉलिक्यूल्स कुछ और है, ओके, वुड को हम उसके ऊपर लगाते हैं, फेविकोल को लगाते हैं वुड के ऊपर, ओके, तो कोहेसिव फोर्सेस में वो होते हैं एडहेसिव फोर्सेस, क्या होते हैं इनको? हाँ, यस, राइट डाउन. मॉलिक्यूलर रेंज, मॉलिक्यूलर रेंज, molecular range, it is the maximum distance, it is the maximum distance up to which, it is the maximum distance up to which a molecule, up to which a molecule exert measurable force, yes, it is the measurable distance up to which, it is the maximum distance up to which a molecule can exert measurable force, can exert measurable force. Yes, students, listen. Anyone among you who is more than 18 plus years? Yes. Yes, students, online students. Anyone? Okay. So molecular range क्या होते?
it is the maximum distance up to which a molecule can exert what measurable force. Okay, मीन्स देखो अगर मैं यहाँ से आनंदवीर को फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन इसके ऊपर उसका असर नहीं हो रहा है तो वो मेरी रेंज से बाहर है ना। अगर मैं किसी बच्चे को पकड़ के यहाँ से खींच लूं तो वो क्या है, दैट इज मोलिकुलर रेंज। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, लिसन, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, लिसन। अब मेरी रेंज इतनी है ना, अब इतनी रेंज ऊपर को, इतनी रेंज आगे को, इतनी रेंज इधर को, इतनी रेंज इधर को, तो एक स्फीयर बढ़ गया ना, जिसकी रेडियस कितनी है, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है ना। ओके, a sphere around the molecule, a sphere around the molecule of molecular rate, a sphere of what, around the molecule, around the molecule whose radius is equal to molecular range, whose radius is equal to molecular range. Next, surface film, surface film, surface film. It is a thin film near the free surface. It is a thin film near the free top surface of liquid whose thickness is equal to molecular range of the liquid, whose thickness is of molecular range of the liquid. Okay, nowadays ये आ गया आपको समझ। कोहेसिव फोर्सेस होती है जैसे वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में, ओके, आयरन के बीच में, यही कारण होता है कोहेसिव फोर्सेस के कारण। क्या होता है, सॉलिड ऑफ क्या होता है उसको फिक्स शेप है ना, क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं, गैसेस की थोड़ी कम होती है, लिक्विड थोड़ी कम होती है। ओके, और एडहेसिव फोर्सेस होती है मॉलिक्यूल्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट नेचर। एंड मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच अ मॉलिक्यूल कैन अट्रैक्ट with the measurable force, okay, to some another molecules and sphere of influence. जितनी मेरी molecular range है, इस range का अगर sphere में चारों तरफ होना, that is sphere of what, in influence. And what is surface film, that is the film on the top surface, okay, और उसकी thickness होती है molecular range के बराबर। okay, now write down very very important molecular theory of surface tension, molecular theory of, बड़े ध्यान से समझ लेना बेटे आपने। ओके, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। यस बेटा, रूपाली मैम हैज शेयर्ड द अटेंडेंस फॉर्म, प्लीज फिल इट। यस, मॉलिक्यूलर क्या लिखा है तूने, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। आपने बड़े ध्यान से पढ़ लो उसका नाम, मॉलिक्यूलर, केमिस्ट्री में पढ़ी होगी शायद, आपने पढ़ी मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी आपने तो कल को कर फिजिक्स में पढ़ी, थ्योरी ऑफ व्हाट, सरफेस टेंशन। देखना बेटे बड़े ध्यान से समझो, समझना इसको, लिखना फिर घर में जाके अपने आप से। ओके, देख लो इधर, एयर इज अ कंटेनर, थोड़ा बड़ा करके ना मैग्नीफाई करके, एयर इज अ कंटेनर। यार मैं कह रहा हूँ पीछे चल जाओ या इधर आ जाओ, क्यों नहीं आपको सुनाई देता है, मेरे को फील होता है भी आपको नहीं पता चल रहा है। ये आजा, तेरे को बोला ना बेंच करिए। तो बेटे लेट इट कंटेन सम लिक्विड, ओके। नाउ देयर इज व्हाट, ए इतनी थिकनेस का बना रहा हूं मैं, क्या ए फिल्म, थीन फिल्म इतनी थोड़ी होती है ना, इतना मोटा मॉलिक्यूल होगा पानी का, तो हमेशा लग जाके बोलने मैंने 1.5 मॉलिक्यूल पिया ना, समझ गए। हाँ, ओके, इतना मैं बता रहा हूँ। ओके, अब देखो बेटे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल में यहाँ पे ले रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल है ना, दिस मॉलिक्यूल एट पॉइंट ए, और ये इसकी क्या है, ये इसकी मॉलिक्यूलर रेंज है ना, ए है मॉलिक्यूल,
और इसकी मॉलिक्यूलर रेंज ये है ना। ओके, सो हुआ क्या एक्चुअली, इस मॉलिक्यूल को जो नेबरिंग के मॉलिक्यूल है यहाँ पे, क्योंकि नीचे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल है ना, इन नेबरिंग के मॉलिक्यूल ने इसको इन ऑल डायरेक्शन क्या किया हुआ है, खींचा हुआ ना। जो मॉलिक्यूल यहाँ पे है देखो ऊपरी पानी से भरा है, तो उस मॉलिक्यूल के चारों तरफ यहाँ पे देखता है वहां पे पानी पानी है ना, तो इसको हर एक मॉलिक्यूल ने इन ऑल द डायरेक्शंस क्या किया हुआ, खींचा हुआ है, इसलिए उसको कोई फर्क कोई नहीं, बिकॉज़ फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। ओके, इसको आपने यहाँ से देखो यहाँ आओ तो थोड़ा सा फोर्स आप लगा दो एक्स्ट्रा, थोड़ी सी लगाओ बेचारा चल जाएगा, क्योंकि उसी फोर्स का असर हो जाएगा ना। ओके, अब देखना एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, ये मॉलिक्यूल इसका ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना, इस मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल ये इसकी मॉलिक्यूल रेंज है ना, दिस मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है एट पॉइंट बी। ओके, ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को देखो क्या किया है, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, दिस वन। ओके, और एक मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे है, एक बिल्कुल टॉप पे ना, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है बिल्कुल टॉप पे, और इस मॉलिक्यूल को खींचा है, इस मॉलिक्यूल को खींचा है ऑल द डायरेक्शन, लेकिन इसके ऊपर जो है कोई क्या नहीं है, फोर्स नहीं है। ओके ओके, नहीं समझ रहे हो आप, बड़े ध्यान से पूर्ण ढंग से ना। ये जो मॉलिक्यूल है देखो, इस मॉलिक्यूल का पूरा हम कह गए कि यहाँ तक पूरा डूबा हुआ है, इसके चारों तरफ जो है मॉलिक्यूल में खींचा हुआ है। अगर इसी मॉलिक्यूल को मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, यहाँ पे कर दूं इसका सेंटर, ओके, तो इसकी भी हालत यही होगी है ना, ये देखो, तो इसके बजाय देखो ये यहाँ तक डूबा हुआ, तो इसको फोर्स यहाँ लगेगी, इधर को लगेगी, ओके, यहाँ तक लगेगी, ओके, ये फोर्स लगेगी, मीन इसके ऊपर फोर्स हाफ है, उसके ऊपर फोर्स ज्यादा, उसके ऊपर बहुत ज्यादा है। इस मॉलिक्यूल को अगर मैंने डिस्प्लेस करना हो यहाँ से यहाँ ऊपर को नीचे को, तो आई हैव टू डू वेरी स्मॉल वर्क है ना, ये हम कहेंगे बिना काम के इसको हिला सकते हैं, मीन इसके पास ये कोई एनर्जी नहीं अपनी, अगर हम इसको हिलाना चाहेंगे तो ये अपने आप हिल जाएगा, हमारा अपोज नहीं करेगा। ओके, अच्छा देखना, ये जो मॉलिक्यूल है बेटे, इस मॉलिक्यूल को देखो, इन मॉलिक्यूल में खींचा हुआ है ना, और देखो 1 2 3 4 5 6 7, ओके, ज्यादातर फोर्सेस नीचे को है ना। अब अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को ऊपर करना हो अगर, तो जो इसके मॉलिक्यूल्स है नीचे वाटर के, वो मेरी फोर्स का क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। जितना मैंने इसको ऊपर करना होगा उतना इनका ऑपोजिशन क्या होगा, और अगर मैंने इसको ऊपर कर दिया तो जो मैंने काम किया वो उस मॉलिक्यूल के बीच में स्टोर हो गया इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, वो उसमें स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। अब सोचो भला, जो बिल्कुल टॉप लेयर का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कितनी क्या होगी, अट्रैक्शन होगी नीचे को ना, बाकी मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही है सारी की सारी कहां पर लग रही है, नीचे को लग रही है। ओके ओके, ये जो है इसको बोलेंगे सरफेस फिल्म ए, और इसकी जो थिकनेस है किसके बराबर है, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है, और इस मैक्सिमम एनर्जी के कारण क्या करना चाहेगा बोलो हवा से, इट विल स्टार्ट टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। सरफेस के ऊपर जब क्या पोटेंशियल होगी लिक्विड के सरफेस के ऊपर, देन द लिक्विड विल स्टार्ट टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। ओके, और ट्रायंगल रेक्टेंगल, ये एंगल वो एंगल, ये एंगल वो सिलेंडर, ओके, इन सब में जो क्या होता है, अगर मान लो मैं आपको 1 किलो वो दूं, आयरन है ना, सेम कंपनी का 10 जगह और यहाँ पे इसकी हमने 10 शेप बना लिया अलग अलग ना, और रेक्टेंगल नहीं बनी, कुछ बन गया गम जो मर गया, लेकिन उनमें सबसे जो कम एरिया हो किसका होगा, ओके। तो इस कंटेनर के लिक्विड को जब मैं ऐसे फेंकूंगा ऊपर, तो ये लिक्विड जो होगा अपने वेट के कारण टूट जाएगा ना, ओके, लेकिन जितना ही टूटता जाएगा इट विल ट्राई टू एक्वायर सर्कुलर शेप। ओके ओके,
So that is why liquids in free space they try to acquire spherical shape. तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि अरबों अरबों साल पहले जब मैं छोटा सा था, जब ये ब्रह्मांड बना था, तो सारे के सारे अर्थ भी जो थी वो क्या थी, लिक्विड थी। बताइए कारण और सारे जितने भी क्या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर स्फेरिकल इन शेप है, कोई रेक्टेंगल नहीं है, कोई ट्रायंगल नहीं है। ओके, हो सकता है। ओके हाँ चलो, तो बेटे आपको समझ आ गया। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी explain the surface tension or explain why a liquid acquires spherical shape. Okay, or free surface of a liquid always try to acquire free what spherical shape. एक बार फिर सुन लो उसको बड़े ढंग से। हमने यहाँ पे 3 क्या बनाया, 3 मॉलिक्यूल बनाने ना। ये जो मॉलिक्यूल है इसको चारों तरफ से फोर्स बराबर है, इसको अगर आपने हिलाना हो ऊपर नीचे तो बिना काम से हिल जाना है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है बोलो सबसे, बोलो। अब मेरी बात सुनो, अगर आप इस गली में जा रहे हो, कुछ ईंटें नीचे पड़ी हैं, कुछ ऊपर पड़ी हैं, ये आप ऊपर से झांक रही हैं ऐसा, तो आपको डर किससे ज्यादा, इससे कोई डर नहीं है ना। अब ये जो मॉलिक्यूल है क्या 75% पानी में है और आधा इसका जो मॉलिक्यूलर रेंज है वो हवा में ना, तो इसका मतलब मैक्सिमम जो फोर्स है उसको नीचे खींच रही है। और ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसका 50% हिस्सा हवा में और 50% कम है। इसकी तो खींच बहुत है ना, मतलब हम कह सकते हैं इसका तो पजामा खुलने बड़ा है ना। ओके, अगले भागेगा, देखो बच्चे दिखे मैंने भाग रहे हैं, भाग रहे हैं और पीछे दूसरे खींच रहे होते हैं ना, तो इसके ऊपर जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है। मींस ये मॉलिक्यूल जब ऊपर गया होगा तो देखो पता नहीं कितने बिलियन और बिलियन मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस के अगेंस्ट गया है ना, तो जितना इसने काम किया वो सारे का सारा काम स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। Okay, so therefore the molecules of the surface, free surface of liquid, they possesses energy, okay, or they possesses some property that surface. अब देखो एक मॉलिक्यूल इसके साथ हुआ है क्या, हुआ है क्या, इन मॉलिक्यूल का जो सरफेस के मॉलिक्यूल है इनका क्या बन गया, तो मेम्ब्रेन। और देखा होगा आपने बरसात के दिनों में पानी के बीच में छोटी छोटी कीड़ियां कैसे भागती हैं पानी के ऊपर, क्योंकि जो पानी की जो सरफेस के ऊपर जो मेम्ब्रेन है, खींच जो है वो उनके वेट को सह लेती है ना। ओके